سن کر تو ذرا دیکھو ایک بار اودنامہ۔ ناظرین آداب، 2 جون 2020 مطابق 9 شوال المکرم کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اودھ نامہ نے دوسرے برس کی پہلی کابینی میٹنگ کو صفحہ اول پر پہلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں مرکزی حکومت کی جانب سے کئی تاریخی فیصلے لیے جانے کی خبر ہے۔ تفصیل کے مطابق رہائش اور شہری امور کی وزارت نے ریہڑی لگانے والوں کو سستے سود پر قرض دینے کے لیے ایک اسپیشل مائکرو کریڈٹ سویدھا یوجنا شروع کی ہے۔ یہ اسکیم انہیں پھر سے کام شروع کرنے اور اپنی روزی روٹی کمانے کا اہل بنانے میں میل کا پتھر ثابت ہوگی۔ حکومت نے سال 2020-21 کے لیے خریف فصلوں کی کم از کم حمایت قیمت یعنی MSP کا اعلان کرتے ہوئے عام دھان کا MSP 1868 روپے، مکہ کا 1850 روپے، جوار کا 2620 روپے، ارہر کا 7196 روپے اور باجرہ کا 2150 روپے فی کنٹل طے کر دیا ہے۔ حکومت نے بینکوں کی طرف سے زرعی اور متعلقہ سرگرمیوں کے لیے دیے گئے 3 لاکھ روپے تک کے تمام مختصر مدتی قرضوں کی ادائیگی کی تاریخ میں 31 اگست تک توسیع کرنے کا فیصلہ بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے اعلان کیے گئے لاک ڈاؤن سے پریشانی میں پھنسے ریہڑی پٹری والے خوردہ فروشوں کے لیے سکشم وت پوشن یوجنا شروع کی ہے، جس کے تحت پھل، سبزی، چائے، پکوڑے، پان، گٹکا وغیرہ فروخت کرنے والے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آسان شرائط پر 10,000 روپے کا قرض مل سکے گا۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ قتل معاملہ بالائی حصے کی دوسری خبر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں تشدد کے چلتے فائرنگ میں 16 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے پتھراؤ کر رہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا ہے۔ رسوئی گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کی خبر بھی نمایاں طور سے شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ملک کی سب سے بڑی تیل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کے مطابق قومی راجدھانی دہلی میں 14.2 کلو گرام کے بغیر سبسڈی والے گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمت جون ماہ کے لیے 553 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مئی میں اس کی قیمت 581 روپے 50 پیسے تھی۔ واضح ہے، اس سے پہلے مئی میں اس کی قیمت میں 162 روپے کا بڑا اضافہ کیا گیا تھا۔ دہلی کے علاوہ چنئی، ممبئی اور کولکاتہ میں بھی کمی و بیشی کے ساتھ اضافے کیے گئے ہیں۔ صفحے کی آخری خبر میں ان لاک 1 کے پہلے دن کی حالات بیانی کی گئی ہے۔ تفصیل کے مطابق ان لاک 1 کے پہلے دن کافی حد تک زندگی معمول پر لوٹ آئی۔ آفیسز اور دکانیں مکمل طور سے کھلی تو شاہراہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے کو ملا، لیکن آٹو رکشہ اور ای رکشہ کی کمی ضرور دکھائی دی۔ ہدایت کے مطابق شاپنگ مالز، مذہبی مقامات اور ہوٹل اور ریسٹورنٹ 8 جون سے کھلیں گے، جبکہ سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر 100% حاضری کے ساتھ کھلنے لگے ہیں۔ انتظامیہ بشمول پولیس اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ دکانیں، آفیسز اور دیگر عوامی مقامات پر سماجی فاصلہ، سینیٹائزیشن اور چہرے پر ماسک کا استعمال ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ چین نے ہندوستان کو دی دھمکی، کس سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے؟ چین کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان چین امریکہ تنازع میں مداخلت کرتا ہے تو اس کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ مضمون کے مطابق چین نے کہا ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو حکومت ہند کو اس کولڈ وار میں فریق بننے کے لیے اکسا رہی ہیں تاکہ وہ ان حالات کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ان خبروں کے علاوہ کانپور واقع GSVM میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر آرتی لال چندانی کی اس وائرل ویڈیو کا ذکر جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت والوں کو دہشت گرد ٹھہراتے ہوئے انہیں مار ڈالنے جیسی باتیں کہی ہیں، اور واجد خان کا کورونا انفیکشن سے انتقال جیسی اہم اطلاعات بھی نمایاں طور سے شائع کی گئی ہیں۔ امریکہ میں چل رہے احتجاج کو اودھ نامہ نے عالمی صفحے کی پہلی خبر قرار دیا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے سبب ہونے والے فسادات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز پھر وائٹ ہاؤس کے قریب ایک چھوٹے پارک میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس کو روکنے کے لیے حکام نے آنسو گیس اسپرے اور دیگر اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ ماحول کو دیکھتے ہوئے کئی ریاستوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ کشیدہ حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حفاظت کی غرض سے دہشت گردی جیسی ہنگامی صورتحال کے لیے بنائی گئی بنکر میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارنا پڑا۔ واضح ہے، یہ احتجاج سیاہ فام جارج فلائیڈ کی پولیس کی بہیمانہ کارروائی میں دم توڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امریکی اٹلانٹک کونسل کی ممبر کے حالیہ بیان پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی کا بیان بھی اسی صفحے کی دوسری جانب موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے امریکہ اپنی انا میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اسے دوسروں کی نصیحت بری لگنے لگی ہے۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل معاملہ رپورٹ بھی اسی صفحے کے درمیانی حصے میں نمایاں ہے، جس کے مطابق پاکستانی سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور ملزمان کی سزائے
سویدھائیں بحال کرنے سے متعلق سندھ حکومت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ بتاتے چلے سندھ ہائی کورٹ نے 2 اپریل کو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا کے بعد قتل کے مقدمے میں 4 ملزمان کی دائر کردہ اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے 3 کی اپیلیں منظور کر لی تھی، جبکہ عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ کورونا وبا کے تعلق سے صفحے پر 3 اہم خبریں شائع ہوئی ہیں۔ پہلی خبر میں اس وبا سے متاثر مریضوں کی تعداد بتائی گئی ہے، جس کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 62,67,453 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,73,961 ہوئی ہیں۔ متاثر ہونے والوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے اور ہلاکتوں کی بڑھتی تعداد کے باوجود دنیا بھر کے کئی ممالک نے لاک ڈاؤن میں نرمی دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں کورونا وائرس کے سبب نافذ لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے شاپنگ مالز اور پارکس کھول دیے گئے ہیں، جبکہ شمالی کوریا میں بھی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے روس دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں 30 نمبر پر ہے۔ وہیں ترکی میں بھی 10 ہفتوں کی بندش کے بعد نماز جمعہ کے لیے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جاپانی حکام بھی اب ان چند محدود ممالک سے آنے والوں کے لیے اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنے پر غور کر رہے ہیں جہاں کورونا وائرس کے کیسوں کے اندراج کی سطح کم ہے۔ ان سب کے علاوہ خیبر پختونخوا کی خبر کے مطابق کورونا وبا نے وہاں کے 2 ڈاکٹروں کی جان لے لی ہے۔ ریاستی صفحے کا آغاز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایات سے ہو رہا ہے، جس کی تفصیل کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاعات مسٹر اوینیش کمار اوستھی نے لوک بھون واقع میڈیا سینٹر میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکومت ہند کی گائیڈ لائن پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے ان لاک سسٹم کے مؤثر عمل آوری کی ہدایات دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکمل احتیاط اور چوکسی برتتے ہوئے سبھی اقتصادی، کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کو شروع کیا جائے۔ بازاروں میں بھیڑ جمع نہ ہو، اس کے پیش نظر پولیس کے مسلسل گشت کرنے پر زور دیا ہے۔ مسٹر اوینیش کمار اوستھی نے یہ بھی بتایا کہ کاریگروں، مزدوروں کا پورا ڈیٹا بیس محکمہ ریونیو کے ذریعے جمع کیا جا رہا ہے۔ اب تک 23 سے 24 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا بیس تیار کر دیا گیا ہے۔ آشا ورکرز کے ذریعے اب تک 11,47,872 کاریگروں مزدوروں سے ان کے گھر پر جا کر رابطہ کیا گیا ہے، جس میں 1027 لوگوں کو کووڈ-19 انفیکشن کے اثرات پائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گرام اور محلہ نگرانی کمیٹیوں کے ذریعے نگرانی کا کام مستعدی سے کیا جا رہا ہے۔ اب تک 10,659 سرویلانس ٹیم کے ذریعے 78,27,404 گھروں کے 3,97,00,000 لوگوں کا سروے کیا جا چکا ہے۔ خبر میں شائع باکس میں ضلع غازی پور اور مین پوری میں 4 بچوں سمیت 3 افراد کے ڈوب کر مرنے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار رنج و غم بھی موجود ہے۔ وزیر شہری ہوابازی کی جائزہ میٹنگ کی خبر صفحے کے نصف اول حصے پر نمایاں ہے، جس کے مطابق وزیر شہری ہوابازی نند گوپال گپتا نندی نے ہدایت دیے ہیں کہ ایئرپورٹ پر آ رہے مسافروں کے ذریعے کورونا وبا کے بچاؤ کے ضابطے کی تعمیل کرانا یقینی بنائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر بارش کے موسم میں پانی جمع نہ ہو۔ انہوں نے ڈائریکٹر ہوابازی ایئر لائنز افسروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کرانے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ میٹنگ میں پائلٹوں کی اڑان ڈیوٹی کے لیے روسٹر بنائے جانے کی رضامندی بنی، ہوائی جہازوں کی چارٹر اور ایئر ایمبولینس خدمات کی پولنگ کے امکانات کی اسٹڈی کر رپورٹ تیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دیے گئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو کے بیان کو صفحے کے ذیلی حصے میں جگہ ملی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے مرکز میں بی جے پی حکومت نے معاشی پیکج انہی لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے اب تک معیشت کو ڈبویا ہے۔ اس پیکج سے مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کا آخر کیا حاصل ہوا؟ غریب مزدور فاقہ کشی کر رہے ہیں اور کسان خودکشی پر مجبور ہیں۔ اسی خبر سے منسلک باکس میں سپا سپریمو مایاوتی کے اس مشورے کو بھی شائع کیا ہے جس میں انہوں نے ملک میں ان لاک 1 نافذ ہونے پر حکومت کو زیادہ سنجیدہ اور بہتر حکمت عملی اپنانے کی بات کہی ہے۔ کانگریسی صدر اجے کمار للو کی گرفتاری کے احتجاج اور رہائی کی مانگ کو لے کر کانگریسی لیڈر آرادھنا مشرا مونا کے خط کو بھی ریاستی صفحے پر جگہ دی گئی ہے، جس میں انہوں نے گورنر اتر پردیش کو لکھا ہے کہ آپ ریاست کی مکھیا ہیں، ہمیں بھروسہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ یوپی کی راجدھانی لکھنؤ میں لیفٹ رائٹ فارمولے کے تحت دکانیں کھلی، کئی مقامات پر سماجی فاصلے کی خلاف ورزی اور حکومت کا بیمار یا بند صنعتی یونٹوں کو پھر چلانے کا منصوبہ جیسی خبروں کو بھی اہتمام کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ ناظرین آداب، اودھرما کے وائس ایڈیشن میں صفحہ 7 اور صفحہ آخر کی اہم خبروں کی تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اپنا وطن صفحے پر پہلی سرخی ہے، کیجریوال نے دہلی بارڈر کو 1 ہفتے تک مزید بند رکھنے کا کیا اعلان۔
खबर के मुताबिक दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में नाई की दुकानों के साथ साथ तमाम दुकानें मामूल के मुताबिक खुलेंगी और दिल्ली बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील रहेगा और उस पर आगे का फैसला दिल्ली के लोगों से मिलने वाली तजावीज की बुनियाद पर किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली सबकी है, दिल्ली में सेहत की खिदमत सबसे बेहतर होने की वजह से मुल्क भर से लोग इलाज कराने आते हैं। दिल्ली किसी का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकती है। बॉर्डर खोलने पर कोविड बिस्तर जल्द भर सकते हैं। इसकी वजह से बॉर्डर खोलने पर मुझे आवाम की रहनुमाई और तजावीज चाहिए। बंगाल गवर्नर के एक बार फिर तबलीगी जमात के नाम पर ममता हुकूमत की तनकीद किए जाने को पेशानी की बाई जानिब नुमाया किया गया है। खबर के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर तबलीगी जमात के नाम पर ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए एक बयान में कहा है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि ममता हुकूमत ने बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले तबलीगियों को हरिदासपुर चेक पोस्ट के रास्ते भेजने की कोशिश की, जबकि उनके खिलाफ लॉकआउट नोटिस जारी थे। पेशानी की दाईं जानिब नूराना कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए तफ्तीश के लिए सीबीआई को 3 माह की मजीद मोहलत दिए जाने की खबर है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सीबीआई के वकील के दलाइल सुनने के बाद तफ्तीशी एजेंसी को 3 महीने की मजीद मोहलत दे दी। अदालत ने सीबीआई को इस मामले की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 10वीं बार मोहलत बढ़ाई है। कोरोना की दहशत में इंसानियत भी खत्म, घर वालों ने सड़क पर छोड़ी लाश। इस सुर्खी के तहत खबर में बताया गया है कि कोरोना इन्फेक्शन का खौफ लोगों में बढ़ता ही जा रहा है और यह खौफ इस कदर बढ़ गया है कि अब इंसानियत भी खत्म होती हुई मालूम पड़ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुंबई में एक फैमिली ने अपने ही कुंबे के 35 साला फर्द की लाश को सड़क के किनारे रखकर छोड़ दिया। इसी सफे पर यह खबर भी नुमाया सुर्खी में है, जिसमें बताया गया है कि शहरियत तरमीमी एक्ट पर पार्टी की मुखालिफत करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खानदान के रुकन कुमार चंद्र बोस को बंगाल बीजेपी की नई कमेटी से बाहर कर दिया गया है। सफा 7 के झैली हिस्से में शाया सुर्खी है, तैयारे में दरमियान की नशिस्त खाली रखनी होगी, मुसाफिरों को पानी देने पर भी रोक। खबर के मुताबिक शहरी हवाबाजी रेगुलेटर ने सुप्रीम कोर्ट के एक तबसरे की रोशनी में इतवार को जारी हुक्म में मुसाफिर परवाजों के लिए इजाफी हिदायत जारी की। उसने कहा कि जहां तक मुमकिन हो दरमियानी सीट खाली रखी जानी चाहिए, ताहम एक साथ बैठने वाले तमाम मुसाफिरों के एक ही खानदान का रुकन होने पर यह जरूरी नहीं होगा। इसी के साथ परवाज के दौरान पानी भी न देने का हुक्म दिया गया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जारी बयान की सुर्खी है, जिसमें कहा गया है कि जरूरतमंदों की बर वक्त मदद करना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। खबर में कहा गया है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को राशन किट्स, मजदूरों को खाने पीने की चीजें और कोरोना से मुतालिक दीगर जरूरियात फराहम करने में नुमाया किरदार इस यकीन के साथ किया है कि जरूरतमंदों की बर वक्त मदद करना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। इंहिदाम जन्नतुल बकी के खिलाफ और मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर नौ के लिए मजलिस उलमाए हिंद का ऑनलाइन एहतजाज किए जाने की खबर सफ़ा आखिर की पहली सुर्खी है। खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नजर इस साल 8 शव्वाल को यौम इंहिदाम जन्नतुल बकी के मौके पर मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से ऑनलाइन एहतजाज किया गया। इस मौके पर मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने बकी की तामीर नौ के लिए और सऊदी अरब के जरिए जन्नतुल बकी को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ अवाम से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि यौम इंहिदाम जन्नतुल बकी तारीख का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिसके दाग अब तक हमारे दिलों पर हैं और ये दाग अभी मिटे नहीं हैं। इसी सुर्खी के तहत एक दूसरी खबर में मौलाना यासूफ अब्बास की जानिब से जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान मदीने में रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी हजरत फातिमा और इमामों के रोजों को मस्मार किए जाने के एहतजाज में आज एक अजीमुशान एहतजाजी मुजाहिरा किए जाने की खबर है। खबर में कहा गया है कि मौलाना ने गुज़श्ता साल अपने खिताब में कहा था कि इस्लाम मजहब किसी पर जबरदस्ती जुल्म नहीं करता। सऊदी अरब मुसलमानों पर जबरदस्ती कर अपना नजरिया दूसरे पर लादना चाहता है। मौलाना ने सऊदी अरब हुकूमत से मांग की थी कि या तो जन्नतुल बकी की तामीर कराए या हमको इजाजत दे, हम वहां जाकर बनवाएं। आज एक बार फिर वही मांग दोहराई जा रही है। इसी सिलसिले की एक और सुर्खी में जन्नतुल बकी की तामीर नौ के लिए हुसैनी फंड के मुजाहरे की खबर है, जिसमें बताया गया है कि हुसैनी फंड की जानिब से आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का मुकद्दस रोजा सऊदी हुकूमत के जरिए मस्मार किए जाने के एहतजाज में यौम गम ऑनलाइन मनाया गया। इदारे के चेयरमैन मोहम्मद जकी और जनरल सेक्रेटरी ने इस मौके पर एक स्टिकर भी जारी किया, जिसमें मोदी हुकूमत से रोजों के दोबारा तामीर की मांग की गई। सफे के दरमियानी हिस्से में लॉकडाउन खुलने से कबल ही 8000 कोरोना मरीजों के इजाफे की खबर जली सुर्खी में है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना खात्मे के लिए भारत में नाफिज 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज पूरे भारत में लॉक खुल जाने से कबल ज्यादा लोगों के कारोबार उसूल के तहत शुरू हो गए।
लेकिन पहले ही दिन पूरे मुल्क में कोरोना के 8,392 नए मरीज मिलने से हुकूमत की फिक्र बढ़ना लाजमी है। यदुनाथ सिंह पटेल के इंतकाल पर अखिलेश यादव के इजहार रंज की खबर भी इसी सफे पर है। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने जिला मिर्जापुर के साबिक एमएलए मिस्टर यदुनाथ सिंह पटेल उम्र 75 के इंतकाल पर गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आजहानी यदुनाथ सिंह पटेल सारी जिंदगी समाजवादी नजरिए पर कायम रहे। उनकी मौत ने अवामी जिंदगी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मौलाना शाहिद कासमी के इंतकाल पर मौलाना कमर सीतापुरी के इजहार ताजियत की खबर भी सफा आखिर पर मौजूद है, जिसमें मौलाना मोहम्मद शाहिद कासमी नदवी फैजाबादी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कमर सीतापुरी ने कहा कि शाहिद कासमी की इल्मी और दीनी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। मरहूम का मौलाना कारी तैयब, कारी सिद्दीक बादवी, मौलाना अबरारुल हक हरदोई, मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांदलवी, मुफक्किर इस्लाम अबुल हसन अली नदवी, मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी वगैरह से बहुत गहरा ताल्लुक था। उन्होंने अपनी जिंदगी दर्स व तदरीस के लिए वक्फ कर दी थी। वो निहायत मुनकतिरुल मिजाज शरीफुन नफ्स इंसान थे। सफ़े के ज़ैली हिस्से में आमिर नकवी की अवामी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सुर्खी के तहत शाये खबर में बताया गया है कि टीम लखनऊ और शराबबंदी संघर्ष समिति ने आज हाईकोर्ट के सीनियर वकील आमिर नकवी को तंजीम के दफ्तर मुंशी पुलिया इंदिरा नगर लखनऊ में एजाज से नवाजा। टीम लखनऊ और शराबबंदी संघर्ष समिति के सदर मुर्तजा अली ने कहा कि हाईकोर्ट के सीनियर वकील आमिर नकवी की अवामी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। मिस्टर मुर्तजा अली ने कहा कि आमिर नकवी की अवामी खिदमात ऐसी हैं जिन्हें याद करके हमें और आपकी रूह को सुकून पहुंचता है। नाज़रीन किराम, एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। शुआ फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। नाजरीन आदाब। अवधनामा के वाइस एडिशन में सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। इदारती सफ़े पर कोरोना के साथ अब टिड्डियों की मुसीबत उन्वान से अखबार अपने इदारे में लिखता है कि हिंदुस्तान में आने वाला टिड्डी दल अब तक 51,000 हेक्टेयर की फसलों को बर्बाद कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक 4 करोड़ की तादाद वाला टिड्डी दल एक दिन में 35,000 लोगों का अनाज खत्म कर सकता है। हालांकि हुकूमत और किसानों की तरफ से उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव भी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सब कारगर साबित नहीं हुआ तो ये टिड्डियां किसानों और मुल्क के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली हैं। इसी सफे पर नवाब अली अख्तर अपने मजमून हुकूमत के पास न कोई विजन है न कोई प्लान में लिखते हैं। दुनिया भर के लेबर महकमे नौकरी और बेरोजगारी का रिकॉर्ड बताते हैं कि इस हफ्ते कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने बेरोजगार हुए, लेकिन हिंदुस्तान का महकमा लेबर ये नहीं बताता कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। हुकूमत के पास सिर्फ इतना रिकॉर्ड है कि 28 लाख लोगों की मदद की गई, जबकि ये कोई नहीं बता रहा है कि वजीर आजम केयर्स फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया गया। इदारती सफर पर दूसरा मजमून आजम शहाब का है, जिसका उन्वान है मोदी सरकार 2 के 1 साल, गिरे भी तो टांगे ऊपर। आप लिखते हैं कि प्रधान सेवक की हुकूमत के पास जश्न मनाने का कोई जवाब नहीं है। पिछले 6 सालों से हम सिर्फ तबाही की जानिब गामजन हैं। उसकी वजह सिर्फ विजन की कमी और जज्बाती व फिरका वाराना बुनियादों पर मुल्क को चलाने की कोशिश है। यही वजह है कि 8% GDP वाले इस मुल्क की मईशत 1% से भी कम रह गई है। मगर हमारे प्रधान सेवक जी का नारा है कि सब चंगासी। इदारती सफे का आखिरी मजमून साइमा अंसारी का बउनवान कोरोनाई वबा में मजदूरों की वापसी और कंपनियों की बौखलाहट है, जिसमें वो लिखती हैं, मजदूरों की रवानगी से बहुत ही मुश्किलात के नतीजे अभी से सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी कामों में आउटर रिंग रोड के लिए मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसी तरह ये रवानगी जारी रही तो मुल्क के इक्तिसादी हालात पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि मजदूर रुके तो क्यों? जब इस मजदूर पर वक्त पड़ा तब तो मालिकाना हक का दावा करने वालों ने हाथ उठा लिए, उनको उनके कामों से बेरहमी से निकाल दिया गया, तनख्वाहें रोक ली गई। अब जब खुद के नुकसान का सवाल है तो मजदूरों की याद आई। हमारे मजदूरों ने इन हालात में जिन मुश्किलात और दिक्कतों का सामना किया है, उसके बाद वो किसी का भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है। अब मुल्क और उसके हालात क्या होंगे, कारोबार की शक्ल क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
नाज़रीन, कमर इकबाल के 76वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत के तौर पर अदबी सफ़े पर डॉक्टर जहांगीर एहसास का मजमून दक्कन की अजमत का शनावर कमर इकबाल शाये हुआ है। आप लिखते हैं, कमर इकबाल का शुमार बिलाशुबह दक्कन के उन अजीम शोरा में होता है जिन्होंने जदीद दक्कन में अपने अहद के शोरा से हटकर अपनी शेरी कायनात को तरतीब दिया, माजी की यादों को सीने से लगाया, हाल को मुकद्दर जाना और जमाने की परवाह किए बगैर अर्ज दक्कन की अजमत के तरानों को रकम करते रहे। कमर को हमसे जुदा हुए कमोबेश 32 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमें ऐसा महसूस होता है कि वो दक्कन ऐसे गुले सरसबद हैं जो हर जमाने में जब कभी दक्कन की अजमत को शायरी के हवाले से समझने की कोशिश की जाएगी अपने होने का एहसास दिलाते रहेंगे। यही उनकी शेरी अजमत का राज भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी हयात ही में अपनी मिट्टी यानी दक्कन का कर्ज चुकाने की बात की थी। वो बरमला उनके इंतकाल के बाद सच साबित हो रही है। अदबी सफ़े पर दूसरे मजमून की शक्ल में मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी जहान उलूम मारिफ नामी किताब पर वजीर अहमद मिसबाही का तबसरा शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि पूरी किताब रत्ब व याबिस से मुकम्मल तौर पर पाक व साफ है और सबसे बढ़कर जो चीज किताब को इशाअत के बाब में सनद जवाज फराहम करती है वो है मौजू के साथ भरपूर दियानत और इंसाफ का मुजाहिरा। साफ सुथरी उर्दू जबान और बयान में मखदूम पाक के इल्मी लियाकत को उजागर करने के लिए ये एक कामयाब कोशिश है। पढ़ते वक्त कहीं भी उकताहट महसूस नहीं होती। यकीनन ये वो इल्मी गुलदस्ता है जिसे उर्दू नसरी अदब के फरोग का जबरदस्त हिस्सा कहा जाए तो गलत न होगा। जगह जगह मुहावरात, बरमहल इशारात, किनायात और तशबीहात का इस्तेमाल किताब को तफव्वुक और तअल्ला के मनसब पर फायज करती है। अदायगी मानी के बाब में मुसन्निफ ने अल्फाज का इंतखाब बड़ी बेदार मगजी से किया है। एक ही लफ्ज ख्याल और फिक्र की दसियों मानी खेज उक़्दा कुशाई इस चाबुक दस्ती से करता है कि कारी पर खुशगवार हैरत तारी हो जाती है। मुसन्निफ की मादरी जबान अगरचे बंगला है पर उर्दू जबान और अदब में उसके कलम की सुबुख खरामी लाजवाब है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर मौलाना फरीदुल हसन का मजमून बउनवान जन्नतुल बकी मदीने का पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान शाये हुआ है। फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि जन्नतुल बकी मदीने का पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान है। इस्लाम से पहले यह जगह हिजाज के शहर यसरब के अतराफ में एक बाग पर मुश्तमिल थी। पहली सदी हिजरी से मुसलमानों ने यहाँ अपने अमवात को दफनाना शुरू किया और इस्लाम की अहम और बुजुर्ग शख्सियात यहाँ मदफून है। मिन जुमला उनमें हजरत फातिमा दुख्तर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 अइम्मा और पैगम्बर अकरम के बाज रिश्तेदार और अजवाज असहाब अंसार शामिल हैं। यह कब्रिस्तान ओहद में मकबरा जनाब हमजा या कुबा के मकाम पर इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा की तरह मुकद्दस है और उन मकामात मुकद्दसा में शुमार होता है जिनकी जियारत को हुज्जाज अपने इबादती आमाल में शुमार करते हैं। 8 शव्वाल 1344 हिजरी को बकी मस्मार होने के बाद यह दिन यौमुल इन्हिदाम से मशहूर हुआ। लखनऊ के बुजुर्ग तरीन उलमा किराम ने इन्हिदाम बकी पर जलसा किया और यह दिन यौमुल इन्हिदाम बकी से मशहूर हुआ और आज तक सारी दुनिया मजम्मत कर रही है। हम भी मजम्मत करते हैं इन्हिदाम जन्नत बकी की और दुआ करते हैं कि जन्नतुल बकी जल्द तामीर हो। इसी सिलसिले का दूसरा मजमून रजा अब्बास सहाफी का है जिसका उन्वान है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मजमून निगार लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो भी फातिमा को अजियत देगा वो मुझे अजियत देगा, जो मुझे अजियत देगा समझो वो अल्लाह को अजियत देगा और अल्लाह को अजियत देने वाला काफिर है, मुर्तद है, जहन्नमी है। हवाला सही बुखारी, सहाय सित्ता, तबरी, सही मुस्लिम। और फरमाया कि जिससे फातिमा राजी समझो मैं राजी, जिससे मैं राजी समझो अल्लाह राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे मेरा खुदा नाराज। अब दुनिया फिक्र करे कि रसूल की इकलौती बेटी फातिमा की कितनी अजमत है। अगर कोई हुकूमत उसके मजार को गिराए, उसकी कब्र खुली धूप में वीरानी के साथ रहे तो क्या रसूल राजी रहेंगे। इसी सफ़े पर मोहम्मद अब्बास धालीवाल का मजमून कोरोना से मुतासरा अमरीका अब नस्ली तशद्दुद में झुलसा है। यह मजमून अमरीका में पुलिस हिरासत में एक सियाह फाम की मौत पर अमेरिका में होने वाले रद्द अमल के तनाजुर में है। आप लिखते हैं कि जैसे ही पुलिस की तावील में हुई इस मौत की खबर अमेरिकी लोगों तक पहुंची तो उसके खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें होने लगी। नस्ली फसादात को रोकने के लिए रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के मुतअद्दिद शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ताहम इसके साथ ही 44 साल साबिक पुलिस अफसर डेरिक शॉन पर कत्ल का इल्जाम भी आयद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद शहरों में तोड़फोड़ की कार्रवाइयां शुरू कर दी और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की गरज से पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। मजमून निगाह ये भी लिखते हैं कि अगर हम अमेरिका की तारीख पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि जब भी अमेरिकी सरमायादारी किसी बहरान का शिकार होती है तो ऐसे नाजुक औकात में किसी न किसी तरह से नस्ली फसादात रूनुमा होते महसूस होते हैं। बैअत का तकाजा भी कितना ही करे कोई,
ہر وقت مجسم ہے انکار اودھ نامہ